Very good morning, my dear students of class 10th. I am Poonam Prasad here with the new chapter and the subject, new chapter of your subject, that is subsubject economics, and the chapter is chapter number 2, sectors of Indian economy. Students, you have already heard in class 9th also about the 3 economic activities of Indian economy. कुछ क्लासेस में मे बी संजय सर या पारितोष सर ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, कई क्लासेस में इसको कंप्लीट भी हो गया होगा. जिन क्लासेस में कंप्लीट हुआ है उसको वो क्लासेस इसको एज अ रिवीजन के तौर पे लें, और जिन क्लासेस में नहीं हुआ है उसको एज अ फ्रेश चैप्टर के तौर पे लें. Is that clear? So, if we are talking about the Indian activities or economic activities, yes, the entire activities are divided into the 3 important sectors. So, first of all, we have to go through with what we have to learn in this chapter. So, chapter at a glance in front of you, students. Here we have to go through with the introduction of the chapter. Introduction of the chapter may basically we have to go through with the 3 sectors, that is primary, secondary and tertiary, along with its examples, along with its contribution, or you can say share in the GDP and also in the employment, right? Then definitions of the 3 sectors. अगर हम इसको separately we have to take the 3 sectors with its definitions and examples. Then the classification of sectors and their contribution in GDP also, and employment, as I have told you. Then primary, secondary, tertiary sectors, as if we are talking about the economic activities. Then as a classification term under economic activities, and or you can say the 3 sectors. The 2 sectors classifications are public and private, organized and unorganized sectors. Fine students, with examples, with differentiations. इसमें बेटा हम लोग GDP, GNP के बारे में भी पढ़ेंगे. Then unemployment है, unemployment and its type आप लोगों ने पढ़ा होगा. Open unemployment and disguised और underemployment जिसे हम लोग कहते हैं, with examples. Right to work हम लोग पढ़ेंगे. इसके अलावा इसके एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन उसको इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग बात करेंगे. देन वी ऑल्सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो सेक्टर है दैट इज़ टर्शरी सेक्टर, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. वी हैव टू गो विद दैट. फाइन स्टूडेंट्स, एक्चुअली अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, फर्स्ट इज़ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन. अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो आप लोग देखिएगा डे टू डे लाइफ में वी ऑल आर डूइंग समथिंग, राइट? कुछ ना कुछ हम लोग काम कर रहे हैं, है ना? ये जो काम करना है, ये जो एक्टिविटीज़ है जिससे कि वी कैन जनरेट सम इनकम, इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जैसे फॉर एग्जाम्पल अ बार्बर इज़ कटिंग द हेयर, है ना, ऑफ द कस्टमर्स, एंड ही गेन सम अमाउंट, वेजेस उसको मिल रहा है. गार्डनर गार्डनिंग कर रहा है, गेन वेजेस. द टीचर इज़ टीचिंग इन अ स्कूल, गेन सैलरी. इस तरीके से हम कहें कि समवन इज़ डूइंग देयर वर्क, एवरीवन इज़ डूइंग देयर वर्क, व्हाटसोएवर द वर्किंग क्लास इज़ देयर, वो काम कर रही है, एंड दे आर गेनिंग द money, you can say income. So those activities which generates income are known as economic activity, children. Fine. Basically it is divided into the 3: primary, secondary and tertiary. These 3 are based on its nature of economic activities. Then if we are talking about some activity, some sectors are there which are based on employment condition, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, जिसको हम लोग संगठित और असंगठित क्षेत्र बोलते हैं, क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं, क्षेत्र बोलते हैं. बेस्ड ऑन ओनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पे अगर हम क्षेत्रों को क्लासिफाई या उनको हम क्लासिफाई करते हैं,
वर्गीकृत करते हैं तो वी आर कॉल्ड एज पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक जिसे हम लोग कहते हैं, दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। फाइन स्टूडेंट्स, primary sector, secondary and tertiary sector, if we are talking about the as a brief, primary sector ये activities of the first stage है। first हम लोग बात करते हैं, if we are what are the sectors that are existed in India, we have to define it out, right? introduction तो हम लोगों ने देख लिया, but if we are talking about the primary sectors, तो activities of first stage या activity का पहला stage है, it means that goods which we are produced, students, that are produced by exploiting the natural resources. It means we are obtaining the things naturally, or you can say natural obtaining process is there. It is called as primary sector. Fine. Example, सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सब सेक्टर है इसका, एंड इट्स फॉरेस्ट्री इज़ देयर, फिशिंग इज़ देयर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, दीज आर कॉल्ड एज द important primary sectors. Fine students. If we are talking about the secondary sectors, the secondary sectors are known as processing unit, children, in which the raw material are converted into valuable finished goods. Example, manufacturing industries are there, construction. एक छोटा सा example, sugar cane is converted into sugar. Where? In the mills. Which mills? Which mills? That is your sugar mills. Fine. So here the sugar cane is your raw material and it is your natural product, and if we are converting with the machineries and all, with the technologies, we are converting that sugar cane into the sugar meal into a valuable product. That is what we called it as the sugar cane. Sugar is we called it as secondary activities, है ना बेटा। हम सुबह की चाय में क्या डाल के पीते हैं हम लोग? शुगर केन नहीं बेटा, शुगर, राइट। सो दिस इज़ अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ योर secondary sector. Then students, if we are talking about the tertiary sector, this is it is also called as supportive sectors भी कहते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर रहता है। इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर्स भी कहते हैं, सॉरी वी कॉल्ड इट एज सर्विस सेक्टर्स, राइट। इस सेक्टर्स को हम लोग सर्विस सेक्टर्स भी कहते हैं, ध्यान से। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जिसका आधार एक सपोर्टिव सेक्टर है, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, देन सर्विस सेक्टर्स में हॉस्पिटैलिटी इज़ देयर, ट्रेड एंड कॉमर्स इज़ देयर, राइट बेटा। ये सब के सब कलेक्टिवली बनाते हैं आपके क्या? टर्शियरी सेक्टर। तभी इसको हम लोग सपोर्टिव सिस्टम भी कहते हैं। ये सपोर्टिव सिस्टम एक्चुअली किसके लिए? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसान ने अपनी खेती का माध्यम चुना है और उन्होंने शुगर केन को उगाया, तो ये प्रोसेस आ जाएगा आपका क्या? प्राइमरी सेक्टर। वहाँ से खेत से जो शुगर केन है, कटी हुई शुगर केन है, उसको ले जाके हमें शुगर मिल में पहुँचाना है, तो हमने किसका इस्तेमाल किया? ट्रांसपोर्टेशन का। तो दैट ट्रांसपोर्टेशन इज़ कॉल्ड एज योर टर्शियरी सेक्टर, और दैट टर्शियरी सेक्टर जिसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं, वो द थर्ड एक्टिविटी, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, वो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में लेकर गई आपके शुगर केन को, और शुगर केन में जब मिल में शुगर केन प्रोसेस्ड हुआ एंड द वैल्यूएबल प्रोडक्ट दैट इज़ कॉल्ड एज शुगर वो कन्वर्ट हुआ, तो उसको उठा के आपको बाज़ार में ले जाना, और रिटेलर्स के पास या होलसेलर्स के पास, रिटेलर्स के पास, और रिटेलर्स से फिर कंज्यूमर्स के पास जब आया, तो बेटा वो कंज्यूमर्स ने उसको यूटिलाइज़ किया,
है ना, तो उसमें भी आपका किसकी मदद हुई, ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही साथ कम्युनिकेशन इज देयर, मनी जनरेट हुआ, वो मनी कहाँ सेफ रखा जाएगा या कहाँ से ट्रांजैक्शन होगा, दैट इज़ what we called it as the banking services there, है ना, हम टीचर्स वी आर टीचिंग यू राइट। तो ये भी एक सर्विस सेक्टर में आ जाता है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज जो कि इंटेंजिबल है, राइट, ये दिखता नहीं है बट वी कैन फील इट आउट। सो दीज आर कॉल्ड एज टूरिज्म, ट्रेड यानी पर्यटन, व्यापार, ये सब अल्टीमेटली इट कम्स अप अंडर द इम्पॉर्टेंट टर्शरी सेक्टर। फाइन स्टूडेंट्स, देन स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही टॉपिक अच्छा है, दैट इज़ द शेयर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी in the GDP and in the GDP and in employment. We called it as primary sector, that is प्राइमरी सेक्टर का GDP अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन यानी घरेलू उत्पादन, डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें 14% इज देयर, एम्प्लॉयमेंट में इसका कंट्रीब्यूशन 49 है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी वन, द सेकेंडरी सेक्टर्स इंक्लूड योर, इट मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है बेटा वो 19% है GDP में, कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, एंड एम्प्लॉयमेंट में 24 इज़ देयर। टर्शरी सेक्टर इज़ द लीडिंग इन टर्म्स ऑफ GDP, इन टर्म्स ऑफ 67% है, और एम्प्लॉयमेंट इज़ नियरली 27। अगर हम इसको कैलकुलेट करें चिल्ड्रन, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया है, तो इट कम्स टू योर 100%, right? So these are what we called it as the shares of primary, secondary and tertiary in GDP as well as in employment. अगर हम छोटा सा डाटा इसमें देखें तो अच्छा खासा टर्शरी सेक्टर कैप्चर कर रहा है GDP में, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा है, बट अगर हम एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी प्राइमरी सेक्टर पर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। बेटा इस विषय पे मैं आपसे नेक्स्ट टाइम इस विषय पे मैं आपसे लेटर ऑन बात करूँगी, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी सेक्टर का GDP कंपैरेटिवली अदर सेक्टर से कम है, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ज़्यादा है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्यों आएगा, लेकिन अभी इसका जवाब हम लोग नहीं देंगे, हम इसका जवाब आपको देंगे कब बेटा, जब आपका हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द एम्प्लॉयमेंट जो सेक्शन है अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट उसमें, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। Children, in tomorrow's sections we are going towards with the products of three sectors. Products of three sectors का मतलब इन तीनों sectors के products क्या क्या हो सकते हैं, जिनके सब sectors हैं। जैसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट क्या होगा, क्रॉप ग्रेन्स, माइनिंग का क्या होगा, मिनरल्स, एनिमल हस्बेंड्री का क्या होगा, मिल्क, है ना, मीट, फॉरेस्ट्री का क्या होगा, रीजन्स, गम एक्सेट्रा, मेडिसिनल्स वैल्यू, फिशरीज़ का क्या होगा, दैट इज़ योर फिश एक्सेट्रा, राइट। सो सेकेंडरी सेक्टर का अगर हम बात करें तो पेपर इज़ विद द वुड, ब्रेड इट कम्स टू फ्रॉम द व्हीट, जो नील यानी कि कील होता है दैट कम्स फ्रॉम योर आयरन, clothes comes from your cotton, sugar comes from your sugar cane. If you are talking about the product of your tertiary sector, so it is somewhere somehow मैंने पहले ही बताया है, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन इज़ देयर, कम्युनिकेशन इज़ देयर, द एंटायर ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों ने जोग्राफी में भी पढ़ा होगा अबाउट द लाइफ लाइन्स इन इंडियन इकोनॉमी, लाइफ लाइन्स ऑफ कंट्रीज़ इकोनॉमी में, नेशनल इकोनॉमी में, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। आप लोगों ने पढ़ा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ देयर, फाइन। देन बैंकिंग सर्विसेज आर देयर, इट मीन्स द ट्रांजैक्शन ऑफ योर मनी, इंश्योरेंस इज़ देयर, दैट इंश्योरेंस लीड्स टूवर्ड्स to ensure your life to be secure, fine.
then business sectors are there, public administrations, foreign trades, these all are come under this 3 sectors. तो ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट्स हैं. फाइन. नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द 3 सेक्टर्स. कई बार क्वेश्चन पूछा गया विद एग्जाम्पल्स. बेटा इसमें डिफरेंसेस बहुत आएंगे. तो फर्स्ट हमारा डिफरेंस जो आएगा दैट इज़ GNP, GDP, इंटरमीडिएटरी गुड्स, इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स चिल्ड्रन. राइट, आपके पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए. लेट्स कल मैं आपको इसके आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑन इट. टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय.